Now, another important topic that we have today is Supreme Court questions portions of 97th Amendment Act. 97th Amendment Act के रिगार्डिंग हमने एक कुछ दिन पहले ही 2-3 डेज पहले ही, जो अभी 2-3 लेक्चर पहले ही हमने देखा था क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाई? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन फॉर्म्ड. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. Ministry of Cooperation has been formed at the central level. Now, what is Ministry of Cooperation? Ministry of Cooperation deals with cooperative societies. What is 97th Amendment Act? 97th Constitutional Amendment Act deals with cooperative societies. ठीक है, तो it was brought in 2011. ठीक है, तो it provided for 97th Amendment Act के कुछ portions को सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश कर दिया है. क्रैश मतलब स्ट्रक डाउन. तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 97th अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया था. ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश किया है तो क्यों किया है. बिकॉज इट इज अ टॉपिक अगेन फ्रॉम पॉलिटी. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बैकिंग्स एंड लिमिटेशंस, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एट स्टेक हियर. तो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू फेडरलिज्म is at stake. Federalism. And very important thing is federalism is the basic feature of the constitution. Okay, basic feature of the constitution doctrine कहाँ से आया? केशवानंद भारती 1972. Understood? तो great, we should begin this lecture. Why news? Because Supreme Court on July 20 in a 2:1 majority verdict upheld the validity. The first statement mentions that it upheld the validity of 97th Constitutional Amendment Act. Now, we are going to study that Supreme Court has quashed certain sections of the act, the amendment, certain sections of the 97th Constitutional Amendment Act 2011. Okay, 97th Constitutional Amendment Act was brought in 2011. Now, what Supreme Court has did is it has struck down certain sections of this Amendment Act. Now, why has it done? Because in 2013 itself, Gujarat High Court gave a judgment on a petition filed by an individual, a private citizen. It was not challenged under the federal provisions. ठीक है, federal provisions. Okay, यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंडियन. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमें, लाइक वी आर नॉट कंसिडर अबाउट फेडरलिज्म इटसेल्फ. विल डील विद कि अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है. तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. नाउ the first important thing about Supreme Court is having original and exclusive jurisdiction. Original and exclusive jurisdiction regarding to the matters that are related to the disputes between a state and a center. ठीक है, या between two states. okay, between two states. okay, तो states या center या between two states अगर कोई dispute है तो उसका original and exclusive jurisdiction किसके पास है? Supreme Court. Now, what is original jurisdiction and what is exclusive jurisdiction? Original jurisdiction का meaning है कि a person can approach Supreme Court without the method of appeal. Without the method of appeal मतलब कि एक 2 प्रोसेस है बेसिकली. एक तो ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस फाइल करो, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाओ और हाई कोर्ट से अपील फाइल करो सुप्रीम कोर्ट. तो इसको जब हम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस वी कॉल इट बाय लिटिगेशन बाय अपील. ठीक है ना, you appeal. What you actually did is you appealed High Court to look into the matter of a judgment that has been given by Supreme Court. And if you are not satisfied with the High Court judgment, then you appeal the Supreme Court to look into the judgment that has been given by the High Court. This is
method of appeals. Now in like basic cases like criminal cases, अगर किसी का आपने मर्डर कर दिया तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो. What you do is कि आप सेशंस कोर्ट में आपका केस चलता है. देन मतलब इट्स नॉट अ जनरल थिंग कि आपने कर दिया, बट द थिंग हियर इज कि what kind of cases go to Supreme Court and High Court. If you have been detained illegally, okay, if police takes you to into custody without any legal backing, that your parents can file a habeas corpus in the Supreme Court itself. Supreme Court में without going into district court, then High Court and then Supreme Court, you can directly file a writ petition for the protection of your fundamental rights under Supreme Court. This is called original jurisdiction. मतलब सुप्रीम के पास ओरिजिनल राइट्स हैं टू लिसन इनटू एनी केसेस दैट हैव बीन फाइल्ड अंडर द हाई फंडामेंटल राइट. तो वी वर ट्राइंग टू स्टडी कि ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्या है. तो वी अंडरस्टूड कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट. ही कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. तो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल तो है, इट इज ओरिजिनल, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव. ठीक है. आर्टिकल 32 provides for constitutional remedies, right? It provides that a person whose fundamental right has been violated can approach Supreme Court, but Article 226 also provides that he can approach a High Court also. Okay, so under that Article 32 and Article 226 provide the jurisdiction to High Court as well in case of violation of fundamental rights. That is, Supreme Court के पास original jurisdiction तो है, मतलब a person does not have to go through the process of appeals if a fundamental right is violated, but it is not exclusive. Exclusive का मतलब ये है कि खाली सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केसेस को हियर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. अंडरस्टूड. एक्सक्लूसिव का मतलब है कि खाली सुप्रीम कोर्ट, ऐसे केसेस जिनको खाली सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकता है और कोई कोर्ट इंडिया में हियर नहीं कर सकते. तो फंडामेंटल राइट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल तो है, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव बिकॉज अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट ऑल्सो. अंडरस्टूड. तो यू अंडरस्टूड दैट the jurisdiction of Supreme Court under Article 32 is original but not exclusive. ठीक है. Now we talk about the federal features. Federal features मतलब federal aspect. Okay. Federal aspect मतलब अगर federal aspect का मतलब ही होता है सेंटर और स्टेट के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में कोई टसल है ना, तो उस केस में ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है दैट इज बोथ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव अंडर आर्टिकल 131. ठीक है. इट इज बोथ ओरिजिनल एंड बोथ एक्सक्लूसिव. दैट मीन्स अ डिस्प्यूट ऑफ फेडरल नेचर कैन नॉट बी हर्ड बाय एनी अदर केस. मतलब अगर किसी स्टेट में, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया सेंटर वर्सेस स्टेट, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू टैक्स शेयरिंग, ठीक है, तो ये लोग केस कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं? नहीं कर सकते. हाई कोर्ट में नहीं कर सकते. ये लोग डायरेक्टली दीज पीपल विल हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. मतलब सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो है. ओरिजिनल कैसे हुआ? क्योंकि दे डू नॉट हैव टू फॉलो कि पहले सेशन कोर्ट में फाइल करें, फिर हाई कोर्ट में फाइल करें, फिर सुप्रीम कोर्ट. दे कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. तो ओरिजिनल तो हुआ. एक्सक्लूसिव का मतलब no other court can hear disputes regarding the center and state. तो यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि if it is exclusive and original, then how did the Gujarat High Court give judgment on cooperative societies 97th Amendment Act 2011? So that is a very important interesting concept also कि actually Gujarat High Court in 2013 struck down what? In 2013 struck down some sections of 97th Amendment Act. ठीक है. 97th Amendment Act 2011.
97th अमेंडमेंट 2011 के कुछ सेक्शंस को गुजरात हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 2013 में ही। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को अपहोल्ड किया है अभी, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट हियर। तो हुआ क्या, जब फेडरल नेचर के डिस्प्यूट्स का ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव बोथ, तो हाउ डिड द गुजरात हाई कोर्ट गिव जजमेंट ऑन दैट? ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैच है कि इट वॉज फाइल्ड नॉट बाई एनी स्टेट। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तो या तो सेंटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट या तो स्टेट जाएगा सुप्रीम कोर्ट। बट इन दिस केस when Gujarat High Court gave its judgment, a private citizen, okay, a private citizen went to the court, ठीक है, and he filed a case of the violation of fundamental right. Even more, why? Because 97th Amendment Act 2011 added portions in the fundamental right also. आर्टिकल 19(1)(c) उसमें ऐड किया गया द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्या कहते हैं इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट, एंड ही चैलेंज दैट सिंस द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर द स्टेट लिस्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर द स्टेट लिस्ट, तो इट कैनॉट बी a change cannot be made under that by the central government. तो अगर 97th अमेंडमेंट एक्ट वैलिड हो जाता है, ठीक है, तो 97th अमेंडमेंट वैलिड हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो होंगी वो कर्टेल हो जाएंगी टू लेजिस्लेट इन द डोमेन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। I hope you understood up to this, because we are going to take even more interesting and challenging issues in regard to federalism with respect to this topic itself. I hope you take it from like very start. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो kindly take it from very start and repeat this video, because otherwise you won't be able to understand. Now if we try to understand कि amendment procedure क्या है, what is the amendment procedure of constitution, तो article 368, ठीक है, आर्टिकल 368, ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा देखें, अ ब्रीफ नोट ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। I ask you to please take a snapshot of this, because this is going to be very helpful with your exams, ठीक है, I hope you took the snapshot. तो a brief note on amending power of parliament. तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट अमेंड द Constitution. The very basic, the very fundamental thing. State legislatures cannot amend the Constitution of India. Only Parliament can do that. दूसरा important point बनता है prelims के point of view से कि is the prior recommendation of President required to make an amendment in the Constitution? No. द प्रेसिडेंट का कोई प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है टू मेक एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब पार्लियामेंट, अगर हम ये देखें कि पार्लियामेंट की पावर अगर अमेंड करने की है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ पुट ऑन दैट? तो द लिमिट, देयर इज नो लिमिट ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पोर्शन एंड ऑल ऑफ द पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, subject to the one provision कि the parliament cannot amend those portions which contain the basic feature of the constitution. मतलब parliament cannot amend those features which are the basic feature of constitution. Federalism is one of the basic feature of the constitution. लेकिन अगर federalism एक basic feature of constitution है तो क्या parliament amendment कर ही नहीं सकता है? तो इसके रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन है, इसके रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन है, आर्टिकल 368 में ही प्रोवाइडेड है कि इफ देयर इज एनी टॉपिक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्लॉज है जो कि फेडरल नेचर का है, दैट इज इट अफेक्ट्स बोथ द स्टेट एंड द सेंटर, इट अफेक्ट्स बोथ द स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू bring about a change in that provision, ठीक है, तो अगर इस प्रोविजन में चेंज करने को कोशिश कर रहे हैं
अगर if the central government is trying to bring about a change in a provision, ठीक है, that affects both state and center, तो क्या होगा उस केस में? क्या होगा? the government, ठीक है, the government will have to, the union or the center will have to pass a bill. पहले तो क्या करो, आप बिल पास कराओ, ठीक है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कराओ, ठीक है, इसका जो प्रोसीजर पूरा फॉलो करो, फिर सारे स्टेट्स को भेजो, जितने स्टेट्स इंडिया में हैं उन सारे स्टेट्स को भेजो. इफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, एटलीस्ट if at least half of the states, ठीक है, not at max, at least, if at least half of the states ratify it. ratify का मतलब क्या हुआ? ratify का मतलब क्या हुआ? ratify का मतलब ये नहीं है कि states make a law regarding this. no, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबलीज एक रिजोल्यूशन पास कर देती हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन, मोशन, ओके, लॉ, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं, डू नॉट कंफ्यूज देम, ओके. तो अगर स्टेट्स की असेंबलीज जो है, स्टेट असेंबलीज रिजोल्यूशन पास कर देती हैं सपोर्टिंग इट, ठीक है, सपोर्टिंग द चेंज दैट हैज बीन डन बाय आर्टिकल, दैट हैज बीन डन बाय द सेंटर, देन if at least half, ठीक है, 50% of the state assemblies pass a resolution supporting it, then only it will become a law, then it will be constitutionally valid. तो इसमें हुआ क्या था? 97th Amendment Act was never sent to states for what? It was never sent to states for their assent. Okay, किसी स्टेट ने कभी रिजोल्यूशन पास नहीं किया to accept the 97th Amendment Act 2011. तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है. कौन से प्रोविजंस इनवैलिड है? वो प्रोविजन जो कि स्टेट्स को भी अफेक्ट करते हैं, या फेडरल प्रोविजंस, ओके, वो प्रोविजंस इस लॉ के इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके. तो अब यही हुआ, विल स्टार्ट अगेन, ठीक है. तो the whole 97th Amendment has not been struck down. Those portions have been struck down which deal with the federal provisions of the cooperative societies, ठीक है. Since the cooperative societies are under state list, ठीक है, तो वो प्रोविजन जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करते हैं वो स्ट्रक डाउन है. बट 97th Amendment Act में दूसरे प्रोविजंस भी थे, वो स्ट्रक डाउन नहीं हुए. Now that we will deal with them, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट लिस्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैंने बनाया है. यू कैन लुक इनटू द चैनल, जहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स का चैनल है, आप उसमें ब्राउज करेंगे तो आपको लिस्ट में कहीं ना कहीं अभी 3-4 लेक्चर पहले का ही लेक्चर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन फॉर्म हुई थी तब, ठीक है. तो आप उसको अगर देख लीजिए प्लीज. नाउ Constitution 97th Amendment Act 2011 added Part 9B right after Part 9A, municipals, regarding the cooperative societies working in India. Okay, the word cooperatives was added after the unions and associations in Article 19(1)(c), fundamental right. Okay, a new Article 43B was also added as a DPSP, Directive Principle of State Policy, which shows that the state should promote the formation of cooperative societies. Okay. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स आर, इंडिया में दो प्रकार की कोऑपरेटिव्स हैं. एक तो है स्टेट कोऑपरेटिव्स, दूसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स. तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव एक्ट 2002. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, द सुप्रीम कोर्ट while striking down has not touched the provisions under 97th Constitutional Amendment Act which deal with the operation and formation of multi-state cooperative societies. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगेन वी विल गो बैक टू अवर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, जो भी कह लो आप इसे, ठीक है. तो अब अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में दो टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं. द फर्स्ट वन इज multi-state cooperative society, the second one is normal cooperatives.
तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज हैं जो जिनका एक्सटेंशन वन स्टेट से ज्यादा है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। कोऑपरेटिव्स आर रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। नाउ व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस, बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, आई विल रिपीट इट विद डिफरेंट एंगल। कैसे कि गवर्नमेंट ने 97 पहले तो क्या हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 आया, कोई दिक्कत नहीं थी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कैन बी डेल्ट विद बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन लिस्ट है 7 शेड्यूल की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है दैट आर मेंशन्ड इन ऑफ कोर्स द स्टेट लिस्ट 2, बट जो सेंट्रल लिस्ट है या यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं हम 7 शेड्यूल में, या लिस्ट 1 जिसे कहते हैं, उसमें मेंशन्ड है एनी कॉर्पोरेशन दैट इज बेस्ड इन मोर देन वन स्टेट्स आर एंट्री 15, ठीक है, एंट्री 15 एक बार चेक करिएगा। एंट्री 15 says that union can legislate on any topic, that on any issue that deals with the cooperation या corporation that is based in more than one states. In that case, Multi-State Cooperative Societies Act was promulgated by the central government, and any cooperative society that is based in more than one state is dealt by this act. अब 2002 के बाद आप टाइमलाइन पे आ जाइए 2011, ठीक है। 2011 में हुआ कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आई। यहां पे एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि दिस इज एक्ट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दे बोथ आर लाइक इतने डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों में। ये एक नॉर्मल एक्ट है जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के साथ डील करता था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब एग्जिस्टिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जाके कुछ चेंज कर रहा है, ओके। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन थे? इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो काइंड ऑफ प्रोविजन थे। पहला तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में था, दूसरा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो अब ये समझना जरूरी है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लॉ तो बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकता है सेंट्रल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी लॉ बना सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकता है सेंटर। बट एक शर्त होनी चाहिए कि वो सारे अमेंडमेंट जो कि डील करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ, वो रेटिफाई होने चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स के बाद। लेकिन किसी भी स्टेट ने अभी तक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के किसी भी प्रोविजन को रेटिफाई नहीं किया है, बिकॉज इट वॉज नॉट सेंट टू द स्टेट्स इटसेल्फ, ठीक है, इट वॉज नॉट इवन सेंट टू द स्टेट्स फॉर रेटिफिकेशन। तो अब क्या हुआ कि तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो गलत है, तो जो भी आपने लॉ बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करते हैं, हम उन्हें सबको खारिज करते हैं। लेकिन जो आपने लॉज बनाए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए विद इन द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हम उनको वैलिडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी लेजिटिमेट पावर के अंडर में है, ओके, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिटिमेट पावर के अंडर में है। तो ये है पूरा कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसलिए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन प्रोविजंस दैट डेल्ट विद द फॉर्मेशन एंड प्रोपिगेशन एंड वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, उनको स्ट्रक डाउन कर दिया है। दैट इज द होल कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिनेरियो। Now this I told, that is all. Now brief note about amending power, we were dealing with this। तो प्राइवेट मेंबर प्लस मिनिस्टर बोथ, इस पेज को आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा और जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I have noted the most important points regarding the amending power of parliament, okay। तो कंफ्यूजन भी बहुत है, बट अब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि प्राइवेट मेंबर एंड मिनिस्टर बोथ कैन ब्रिंग अबाउट अ बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? लाइक अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो कुछ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, लाइक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर एंड ऑल, तो ये सारे मिनिस्टर्स हैं।
इन मिनिस्टर्स को छोड़ के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को छोड़ के जितने भी मेंबर हैं, वेदर इन ऑपोजिशन या इन द रूलिंग पार्टी, दे ऑल आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स. ओके, they are not ministers, they are private members, and both private members and ministers can bring about a bill to make a constitutional amendment. This is one of the most important point about amending power article 368. Okay, now दूसरा important चीज क्या है? The majority of the, like what kind of majority needs to approve a amendment under article 368? The total membership of the house and the majority of 1/2 first of all, अगर एक बेसिक एग्जांपल हम देखें, ठीक है, कि किस प्रकार की मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, तो पहले तो ये हो गया, ये लोकसभा हो गई, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है. राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ सीनियर्स एंड लोकसभा इलेक्टेड हाउस, ठीक है, डायरेक्टली इट गेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड. अब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितनी है? अगर हम राज्यसभा, अगर लोकसभा की बात करें, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अजम्पशन 300 मान लेते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट 300, इट इज 543, ठीक है, बट अगर हम 300 मान लेते हैं टोटल मेंबर्स हैं, तो 300 का टोटल मेजॉरिटी कितनी होगी? मोर देन 50%, तभी तो मेजॉरिटी होगी. 300 का मेजॉरिटी कितना होगा? 50%, है ना, तभी तो एक, नहीं तो दोनों साइड माइनॉरिटीज में रहेंगी. तो अगर 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 300 तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी है इस बिल पे, जिस दिन इस बिल पे वोटिंग होनी है, उस दिन मान लो 200 मेंबर ही आते हैं हाउस में, 100 मेंबर अपने घर रुक जाते हैं, तो इसका 2/3 कितना हो गया? 200 इंटू 2/3, ठीक है, तो इट इज अराउंड लाइक 65 फॉर एग्जांपल, है ना. तो 65 इंटू 2, अब जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वैल्यू, मतलब पहले तो 150 मेंबर कम से कम हो, आपको 150 मेंबर तो मिलने ही चाहिए. उसके बाद 65 इंटू 2 मान लो 130 है, ठीक है, और मान लो 135 आता है टोटल, 2/3 ऑफ द मेंबर करके वैल्यू आती है 135. तो हमें कौन सी मेजॉरिटी चूज करनी होगी? 150. क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग है, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग 135 मेंबर्स, बट क्या 135 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस से कम है कि ज्यादा है? अगर वो ज्यादा होगा तो वो वाला कंसिडर करेंगे, अदरवाइज जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस है वो कंसिडर करेंगे. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, और दोनों हाउसेज में ये इस तरीके से ही पास होना चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ ओनली okay, we understood this. If the bill seeks to amend the federal provisions, this is the provision that we are talking about the whole time, कि अगर किसी फेडरल प्रोविजन में कोई चेंज लाने की कोशिश करता है बिल, like cooperative societies, then the bill needs to be passed in the parliament using the article 368 original provisions के तहत, plus it needs to be ratified by at least half the states. अब रेटिफाइड बाई स्टेट्स का मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो रेजोल्यूशन पास करें सपोर्टिंग द बिल, है ना. एंड इफ दे डू दिस द बिल बिकम्स एन एक्ट. ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट cooperative societies and what are the changes that we have observed and how are the federal provisions going to be affected. If you have any doubts, please ask in the comment section. This is a relatively tougher portion from polity, and I hope I made you understood all the dimensions of the topic. Even if you have not understood, kindly go through the lecture once again, and if you have still any queries, kindly ask me in the comment section.